Bismillahirrahmanirrahim. Our new topic is brief survey of Newtonian mechanics. यानी इसमें हमने पहले जो पिछली क्लासेस के अंदर जो न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ी है, न्यूटन लॉज और इससे रिलेटेड थ्योरीज जो पढ़ी हैं, उनका एक ब्रीफ सर्वे है। ये मोस्टली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। और ये सिर्फ उनको रेपिटेशन है ताकि आगे हम मैकेनिक्स की जो पढ़नी है, क्योंकि हमें इसमें न्यूटन की मैकेनिक्स नहीं पढ़नी, हमने लैग्रेंजी और हैमिल्टन की मैकेनिक्स को इस क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करना है। तो ये चूंकि उनकी बेस है, फंडामेंटल है, इसलिए इसको रिपीट हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज द मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। Mechanics of single particle deals with the Newton's laws of motion, and the motion of a particle is usually described by the Newton's second law of motion. And Newton's second law of motion describes that the rate of change of linear momentum with time gives the force acting on the particle. That is, F is equal to dP over dt, where P is the linear momentum and F represents the force acting on the particle. Equation states that the time rate of change of momentum is equal to force and it takes place in the direction of the force. कि जिस direction में force act कर रही होगी, motion भी particle की उसी direction में होगी. The linear momentum P is defined as the product of mass and velocity. P is equal to mv, where v represents the velocity of the particle and is usually defined as let S be a curve traced by the particle during its motion, and R is the radius vector from the origin to the particle. The vector velocity can be defined by the equation v is equal to dr by dt. It can also be written as the rate of change of r with respect to time is equal to the limit delta t goes to 0, r2 minus r1 over delta t, or limit delta t goes to 0, delta s over delta t, which is equal to ds by dt using calculus. R2 minus R1 is equal to delta R as shown in this diagram. This is the R1 and this is R2, and motion is from this point to this point. Arrowhead show kar raha hai. This means that this R1 and this vector from this to this is delta R or delta S, and this is equal to R2 using the head to tail rule. In R1 plus delta R is equal to R2. Our delta R is equal to R2 minus R1. If we substitute the value of P in the above equation, यानी F is equal to dP over dt, P को हमने replace कर दिया mv के साथ, और अगर हम ये consider कर लें कि m is does not depend upon time, यानी it is constant, then we can take mass out of the derivative. So we can write F is equal to m dv by dt, and dv by dt we know that is the rate of change of time, rate of change of velocity is usually known as the acceleration. So we can write F is equal to ma, where acceleration is rate of time, rate of change of velocity, or
it is the time derivative of dr by v is the dr by dt. So this gives the second order time derivative of the displacement. R is the displacement vector. Acceleration is the second order time derivative of the displacement. Velocity is the first order time derivative of displacement, and acceleration is the second order time derivative of the displacement. So substituting this value in equation number 5, we can write F is equal to m dv by dt or ma, और a को रिप्लेस कर दें d2r by dt2 या r डबल डॉट. ये सिंगल डॉट जो है वो सिंगल टाइम डेरिवेटिव को शो करता है और डबल डॉट डबल टाइम डेरिवेटिव को इन सेकेंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव. इस तरह मुख्तसर के लिए हम इसको डबल डॉट या सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. Law of conservation for linear momentum. Since F is equal to the time rate of change of momentum, dp by dt, which can be written as p dot is d by dt. Total force, if total force acting on the particle is 0, in that case F becomes 0, so dp by dt becomes 0. And we know that if the derivative of some quantity is 0, it means that quantity is a constant. As time derivative of constant is 0, so linear momentum becomes constant. Okay, linear momentum in dp का derivative, p का derivative 0 है, it means कि p is a constant quantity. It means that when no force is acting on the particle, its linear momentum remains conserved, which is the law of conservation of linear momentum. When no force is acting on the particle, or the net effect of all the forces which are acting on the particle is 0, in that case the linear momentum will be conserved. Angular momentum. Angular momentum is usually defined by the cross product of the displacement and the linear momentum. L is equal to R cross P. R is the displacement and P is the linear momentum. यहाँ पे इसको हम P क्रॉस R नहीं लिख सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि A क्रॉस P इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. So L is equal to R cross P. R पहले आएगा और P दूसरे नंबर पे होगा. Similarly, torque is the cross product of displacement and the linear force. N is equal to R cross F. अब इस इक्वेशन में अगर हम F की वैल्यू पुट कर दें, जब हमने पीछे ड्राइव की थी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की जगह mv तो r क्रॉस d mv बाई dt हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. As we know that from the vector identity, the time derivative of A cross B is equal to the time derivative of A cross B plus A cross time derivative of B. इस आइडेंटिटी को अगर हम अप्लाई करें तो d by time derivative of r cross mv can written as, mass को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि mass is independent of time, time derivative of r cross v, and this can be written as using this identity. पहले r का time derivative cross v, फिर r cross velocity का time derivative r cross dv by dt. और हम जानते हैं कि ये dr by dt ये velocity को शो करता है. ये velocity को, ये this will become velocity cross velocity. It will become mv cross v plus r cross dv by dt. And we know that this cross product of the same vector gives a null vector, zero vector. जीरो हो जाता है. a cross b is equal to ab sin theta. Theta इस केस में जीरो होगा, sin 0 0 होता है.
इस रेफरेंस से ये हमारे पास A क्रॉस A या V क्रॉस V जो है वो जीरो वेक्टर बन जाएगा. दिस फर्स्ट टर्म will become 0 and we have only this term m into r cross dv by dt. So d by dt of r cross mv is equal to r cross टाइम डेरिवेटिव ऑफ mv. और ये वैल्यू फिर हम इस इक्वेशन में ऊपर पुट करें. यहाँ इसकी जगह हम अब पुट कर सकते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस mv इक्वेशन 9 में. तो n इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस mv. mv हमारे पास मोमेंटम को शो करता है p, r क्रॉस p. और अभी हमने देखा कि r क्रॉस p जो है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू dl बाई dt. n इज इक्वल टू ये l के इक्वल होगा तो dl बाई dt. यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टार्क इज इक्वल टू dl बाई dt. यानी टार्क हम कहते हैं कि टार्क इज द एंगुलर फोर्स. वी कैन सी दैट द एंगुलर फोर्स एट टार्क इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लीनियर फोर्स थी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर फोर्स या टार्क इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इफ the total torque acting on the particle is 0, in that case n will become 0 and dl by dt will be 0. Since time derivative of angular momentum is 0, so angular momentum must be constant. Hence we can state the law of conservation of angular momentum as when no torque is acting on the particle, its angular momentum will be constant or conserved. As we know, the work done is the dot product of the force and the displacement. If a force displaces a particle from a point 1 to another point 2, then by definition work is given by work done from point 1 to point 2 is the integral from point 1 to point 2 force dot displacement ds या dr. f dot dr भी लिख सकते हैं ds. And we know that force is equal to m dv by dt, and we know that dr v is equal to dr or ds by dt. यहाँ से अगर हम ds की वैल्यू निकालें तो ds will be equal to velocity time dt. In ds is equal to v dt. तो ds की जगह v dt पुट करेंगे और f की जगह m dv by dt पुट करेंगे. Then we can write w12 is equal to integral 1 to 2. f की जगह आ गया m dv by dt डॉट ds, और ds की जगह हमारे पास आ गया v dt. m 1 to 2 dv by dt into v dt. v is the velocity. We have vector identity. Time derivative of a dot b is equal to time derivative of a dot b plus a dot time derivative of b. बारी बारी यानी हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ पे हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. वहां पे हम ऑर्डर ऑफ जो है टर्म्स उसको चेंज नहीं कर सकते. Now if we consider the time derivative of v dot v, then it can be written as first v का derivative time that dv by dt dot v plus v और dot second v का time derivative. अब चूंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो हम ये दोनों टर्म्स सिमिलर होंगे, यानी dv by dt dot v एंड v dot dv by dt सेम होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times dv by dt dot v, और v dot v is actually the square of the velocity. और 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ 1/2 d by dt या v square
this will be equal to dv by dt dot v, यानी dv by dt dot v is equal to 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर। ये 2 जो है ये इधर डिवाइड कर दिया हमने, तुम्हारे पास ये टर्म आ गया। इट मीन कि ये जो टर्म है dv by dt dot v, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर। तो ये जो टर्म है इसके वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू मास टाइम 1 to 2 dv by dt डॉट v। इसमें इस टर्म को हम अब 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन 11a को वैल्यूज पुट करें, हमारे पास यह आ जाएगा W12 इज इक्वल टू मास टाइम्स 1 to 2 इंटीग्रल, और ये उस टर्म की जगह मैंने पुट कर दिया 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये आप देख रहे हैं कि ये डी टी को आप इस डी टी के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे, तो ये m/2 1 to 2 ये डिफरेंशियल ऑफ v स्क्वायर बचेगा डी v स्क्वायर, क्योंकि ये डी टी इस डी टी के साथ कैंसिल हो गया। अब डी और इंटीग्रल एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो m/2 जस्ट हमारे पास ये v स्क्वायर बचेगा विद लिमिट 1 to 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। लिमिट पुट करेंगे पहले, अब m/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो इसको हम लिख दिया v2 का स्क्वायर, यानी v स्क्वायर एट पॉइंट 2 माइनस v स्क्वायर एट पॉइंट 1, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। इसको फिर आप फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर एट पॉइंट 2 और वेलोसिटी का स्क्वायर एट पॉइंट 1। ये 1 और 2 जो है पॉइंट्स के लिए है। वी नो दैट द किनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर इज द किनेटिक एनर्जी। तो इसको पॉइंट को हम 1/2 m v2 का स्क्वायर, क्योंकि v ये 2 जो है पॉइंट को शो कर रहा है, यानी किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इसको हम कह सकते हैं कि 1/2 मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट 2, इसको हम t2 यानी किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 यानी t1। तो ये t2 माइनस t1, ये 2 सेकंड पॉइंट को शो कर रहा है और ये 1 फर्स्ट पॉइंट को शो कर रहा है। तो किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस किनेटिक एनर्जी at point 1. Hence, we can say that the work done between 2 points from 1 to 2 is the difference of the kinetic energies between these 2 points. And this is also known as the work kinetic energy theorem. आपने पहले इसको इसी नाम से पढ़ा होगा, वर्क किनेटिक एनर्जी थ्योरम के नाम से। तो डिफरेंस ऑफ द किनेटिक एनर्जी गिव्स द वर्क डन between by the particle to move from point 1 to point 2. If we consider that the particle moves from point 1 and comes back to point 1 again, जहां से चला था वहीं वापस आ जाता है, इस केस में जो t2 हमारा पॉइंट है ये 2 पॉइंट 1 बन जाएगा, जो पॉइंट 2 है वो पॉइंट 1 बन जाएगा। इट मीन के दिस विल टर्म विल आल्सो बी 1 t1। इन दैट केस w11 or W22, this will be equal to T1 minus equal to 0। कि अगर जहां से पार्टिकल चला था वहीं पे वापस आ जाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो किनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट के ऊपर किनेटिक एनर्जी है, ये सेकंड पॉइंट पे, अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों सेम है, तो ये भी T1 होगा, ये भी T1 होगा, या अगर पॉइंट 2 पर है तो ये भी T2 होगा, ये भी T2 होगा। तो इन दैट केस वर्क डन विल बी 0। It means the work done along a closed path is 0. W is equal to the closed integral f dot ds f dot dr is equal to 0। यहाँ से हम ये इक्वेशन हमें कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का कंसेप्ट हमें यहाँ से मिलता है इस इक्वेशन से। It means the field in which the work done along a closed path becomes 0
is known as the conservative field. In this field, the work integral depends only on initial and final positions of the particle. ये सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल पोजीशन से आप किस तरह से मूव करके फाइनल पोजीशन में. नहीं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाते हुए आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलोंग है या किसी को कर्व पाथ था या कोई सर्कुलर पाथ था या किसी और टाइप का पाथ था, रेक्टेंगुलर पाथ था, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता. ये जो इंटीग्रल है क्लोज्ड इंटीग्रल, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर. तो अब ऐसे फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी कि जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है क्लोज पाथ के लिए, तो इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं. हाँ, फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है. इस तरह से डिसिपेटिव फोर्सेस भी होती हैं. तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो पार्टिकल को मूव करने से रोकती है. या रोकने की कोशिश करती है. इस दौरान जितनी भी फोर्स आप लगाते हैं वो हीट की फॉर्म में ज़ाया जाती है, उसको वापस निकालना मुश्किल है. इसलिए जो वर्क फ्रिक्शन की फोर्स करेगी वो ज़ाया हो जाएगा, वो हम वापस नहीं ले सकते, उसको वापस बाहर नहीं निकाला जा सकता. इस वजह से जो भी वर्क डन होगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा. ऐसे ही जो भी डिसिपेशन फोर्सेस हैं जो हीट वगैरह की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं या एनर्जी को ज़ाया करती हैं, लॉस, एनर्जी का लॉस होता है, तो उन फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन होगा वो कभी भी जीरो नहीं होता, पॉजिटिव होता है. इस वजह से जहाँ पे भी फ्रिक्शन की फोर्स होगी या इसी तरह की और डिसिपेटिव फोर्सेस होंगी तो वहाँ पे उस फील्ड के अंदर वर्क डन along the closed path will not be zero. A system cannot be conservative if friction or other dissipative forces are present because the work done due to friction is always positive and so the integral cannot be zero. तो इस केस में जो फिर जो फील्ड होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा और जो फोर्स होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी. A force whose work is independent of path is referred to as the conservative force and the motion under the action of such force is known as the conservative motion. We know from vector calculus that Stokes theorem, vector mechanics, which states that the closed integral work done along a closed path is equal to the surface integral of the curl of force and the dot product of curl of force and the area. Surface integral of the dot product of curl of force and the area. The work done along a closed path, is equal to the surface integral of the dot product of curl of the force and the area. N DA एरिया को शो कर रहा है. इसमें N एक यूनिट वेक्टर है जो एरिया की डायरेक्शन के लिए है और DA मैग्नीट्यूड है एरिया का और ये एरिया की डायरेक्शन है जो ऑलवेज जो है एरिया के परपेंडिकुलर होते हैं. कर्ल ऑफ द फोर्स को हम डेल क्रॉस F भी लिख सकते हैं, इसलिए कर्ल F की जगह हमने डेल क्रॉस F डॉट NDA कर दिया. अब चूंकि हम जानते हैं कि ये क्लोज इंटीग्रल F डॉट DS या F डॉट DR ये जीरो होगा कंजर्वेटिव फील्ड में,
तो यहाँ पे हम 0 पुट कर दें, देन 0 इज इक्वल टू दिस टर्म, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट NdA इज इक्वल टू 0, यानी हमने ये इसको 0 के इक्वल, क्योंकि ये क्लोज पाथ है और यहाँ कंजर्वेटिव फील्ड में ये 0 के इक्वल होता है। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि अब ये दो टर्म्स हैं डेल क्रॉस एफ और NdA, इनका डॉट प्रोडक्ट या इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के आ रहा है। समेशन यहाँ इंटीग्रल समेशन को शो कर रहा होता है, यानी ये बहुत सारी टर्म्स हैं जिनका कंटिन्यूअस सम आप करेंगे तो ये 0 के इक्वल। अब ये हर टर्म है जिसको आप ले रहे हैं इस सम में वो 0 ली जा सकती हैं, और ये अब दो टर्म्स मिलके 0 के इक्वल हो रही हैं, ये डेल क्रॉस एफ और NdA। अब ये DA जो है एरिया को शो कर रहा है, जब भी कोई सरफेस होगा तो उसका एरिया भी लाजमी होगा। इट मीन कि ये जो DA वाली टर्म है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो जहाँ भी एरिया होगा वहाँ पे DA की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती फिर ये वाली टर्म जो है डेल क्रॉस एफ ये लाजमी तौर पर 0, क्योंकि दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों में या तो दोनों 0 होंगी या कम से कम एक उनमें से जरूर 0 होगी। तो इसमें DA वाली टर्म 0 नहीं है, तो डेल क्रॉस एफ जो है वो लाजमी तौर पर 0 होगी। इट मीन्स कि डेल क्रॉस एफ रिप्रेजेंट ए नल वेक्टर, a 0 vector. We have a vector identity from vector calculus. A curl of the gradient of some scalar function phi is always 0. ये आइडेंटिटी है, कैलकुलस मैकेनिक्स है, वेक्टर मैकेनिक्स है। A curl of the gradient of some scalar function phi is always 0. इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन इज डेल फाई, तो कर्ल ऑफ दिस डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ये टर्म है कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, और अब एक दूसरी टर्म है कि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ फोर्स है एफ और यहाँ है ग्रेडियंट यानी डेल फाई, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड फाई। फाई जो है इज ए स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन। इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम देख सकते हैं कि एफ और डेल फाई में हम रिलेशन कि एफ कैन बी इक्वल टू डेल फाई। एफ मस्ट बी द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन फाई। If we consider the scalar function as the potential energy, because potential energy is a scalar quantity, a scalar function, which depends only on the position, V is equal to mgh. So mass g, acceleration due to gravity, और h यानी पोजीशन, h का अलग पोजीशन के साथ है कि पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो we can write F is equal to minus del V. V is the potential energy. The scalar function V is called the potential energy, and V must be the function of only and only position. यहाँ पे ये शर्त है कि अगर V जो है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा तब हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। F is equal to minus del V is only possible if and only if V is the function of position only. ओके, यहाँ पे जो फाई है, फाई इज ए स्केलर फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यू वी जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पे ही डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ना टाइम पे डिपेंड करेगा, ना वेलोसिटी पे, ना किसी और चीज पे, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा। The negative sign appears in this equation helps to assign physical meaning to the potential energy. The significance of a negative sign is that if we move from a point of lower potential to a point of higher potential, the direction of the electric field will be opposite to that of the displacement between the points. अगर पार्टिकल आपका पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रहा है, उस सूरत में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ होगी। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो होगी वो ओके डायरेक्शन जो है वो हाई फील्ड से लो फील्ड की तरफ होती है। पॉइंट 2 पे फील्ड हाई होगा, पॉइंट 1 पे फील्ड लो होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो बनेगी वो पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ होगी। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल की मोशन वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो ये माइनस साइन उसी वजह से आता है कि जो पार्टिकल मूव करता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। This determines the direction of the field. We now define the potential energy V as the work done by a force when a particle goes from point R to some chosen reference point R naught, R0. And then the potential energy, which is the function of R, is equal to integral from R to R0 F dot dr. The existence of potential energy can be established without the use of theorem of vector calculus. Yani work W must be independent of the path of integration between endpoints 1 and 2. Yani sirf work must depend only point 1 and point, in initial point and final point, does not depend upon the path of the particle. Thus, it must be possible to express W as the change in a quantity which depends only upon the position of the endpoints. The quantity may be designated by potential energy V because it depends only on the position, does not depend on the path. So we can write F dot ds is equal to minus dV, yani V2 minus V1 minus V2. dV is V1 minus V2 और dV is equal to V2 minus V1, तो इसलिए minus dV। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि F is equal to minus partial V by partial S। अब यहाँ ये V जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी V is a function whose negative derivative gives the force. And force is the negative derivative of potential energy. For a conservative system, the work done by a conservative force may be written in terms of potential energy at the endpoints in W integral closed integral F dot ds is equal to closed integral from 1 to 2, the integral from 1 to 2 F dot ds, which must be equal to the integral from 2 to 1 F dot ds. But if we look into the figure for path A from 1 to 2, V1 is equal to integral from 1 to 2 F dot ds, and for path B from 2 back to point 1, V2 is equal to 2 to 1 F dot ds. वो पॉजिटिव है, ये अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ये माइनस का साइन है। Thus equation can be written as W is equal to work done from 1 to 2 F dot ds minus 2 to 1 F dot ds, और V1 minus V2, इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो V2 minus V1 जिसको माइनस dV हम लिख सकते हैं, यानी फोर्स work done is equal to minus dV. As we have derived W12 हमने कहा था कि it is T2 minus T1 पीछे हमने, और T2 minus T1 is equal to अब ये हमारे पास है V1 minus V2। ये W हमने पहले निकाला था वर्क किनेटिक एनर्जी थ्योरम में, it is the difference of the kinetic energies in kinetic energy at point 2 minus kinetic energy at point 1, and now this is equal to the work done in terms of potential energy at point 1 minus potential energy at point 2। ये उसका उलट है, ये 2 पे पहले है 1 पे बाद में है, या 1 पे पहले है 2 में बाद में है। और अब V वाली दोनों टर्म यानी T1 वाली दोनों टर्म्स एक साइड पे कर लें और 2 वाली दोनों टर्म्स एक साइड पे कर लें। ये V1 ये माइनस का T1 है, ये इस तरफ ले आए तो V1 प्लस T1 बन जाएगा, और
ये V2 है माइनस का, इसको इस साइड पे ले आए तो T2 प्लस V2। इट मीन्स कि इन दोनों टर्म्स का तलब पॉइंट 1 के साथ है, यानी किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं द टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 is equal to total energy of the particle at point 2. So this states the energy conservation theorem for the particle. If forces acting on a particle are conserved, then total energy of the particle T plus V also becomes conserved. And that's all for today.